Good morning, Pranam, Namaste. Are you all ready for a cracking week? ये हफ्ता जो है is a very significant, very important in the success journey of SHPL. Today is 16th of May और इस हफ्ते को हम लोग start करेंगे with a product training session. And all the people, जितने भी लोग आज from all over India have logged in to learn about the products of सर्वश्री, I would like to warmly welcome. तो आप सभी लोगों के लिए इस सेशन में हार्दिक स्वागत है. मेरा नाम है स्टैन सेरावो, I'm the business coach for SHPL. और आज जितने भी लोग आप पहली बार SHPL के कोई भी वेबिनार में अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए एक स्पेशल हार्दिक स्वागत है, क्योंकि what we believe is that SHPL is a company which sells consumer driven products and services. तो जितनी नॉलेज आपको प्रोडक्ट के बारे में है, सर्विसेज के बारे में है, उतना आसानी से आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्म्ड कस्टमर के हैसियत से उनको आप नॉलेज दे सकते हैं. तो आज as it's Monday, you already know that today is a day where we are learning about the wellness products. जो इस वीडियो में आपने देखा in the history, इतिहास में अब तक का कि which are the 6 diseases that have been creating havoc to the mankind. जो humanity के लिए कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो काफी हद तक बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु के लिए कारण बने हैं. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग थ्रू द कोविड-19 एंड अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है. अभी भी there is a risk, and then every day we are now getting the statistics that कि इतने लोग इन्फेक्शन हुए हैं, इतने लोगों का मृत्यु हुआ है. So it's going on, it's still not over. हमको precautions लेने पड़ेंगे दोस्तों. So let's come to the topic today, and this webinar is 8:13 right now. It's going to go up till around 9 o'clock. So 9 बजे तक ये सेशन रहेगा. आपको म्यूट में रखा गया है, तो wherever you want to communicate, you can use the chat box. Responsibly communicate करिएगा so that इसको distraction ना हो, and be on the topic. आज की जो topic है उसके related ही questions आप पूछ सकते हैं या communicate कर सकते हैं. I see good number of people logged in today on a Monday. Usually Monday is a low day क्योंकि Sunday के बाद में थोड़ा relax होके people actually join in. So thank you very much for joining in today. कितने लोग हैं? You're all excited, really excited for this week, because today is 16th, as I told you earlier, and we're left with only 4 days for a historic ऐतिहासिक event of SHPL. And जैसे मैंने बार-बार कहा है, and then आप सुनते आ रहे हैं बहुत सारे top achievers और leaders से, ये जो event है वो आपका जिंदगी का बहुत एक अहम event हो सकता है. It has the potential to turn around your life completely. So we have 2 very significant events. The 4th anniversary on 20th of May, Friday in Talkatoora Stadium in Delhi, and of course SHPL Vision 2025 conclave on 21st for the selected leaders. So with this, I'd like to now invite the speaker for today. He comes from pharma background. Pharma industry में उन्होंने काफी काम किया हुआ है, एंड पिछले कई महीनों से, सालों से वो वेलनेस के बारे में लोगों को अवेयर करते जा रहे हैं. एंड एट SHPL he has been a product trainer. With your waving of your hands wherever you are, I would like to invite the speaker, Mr. Partho Pratim Mukherjee, Mr. PPM. Wherever you are, put your screen on, and the screen is yours. Warm welcome to you, Mr. Mukherjee. Just check your voice. Your audio is still not clear. Yeah, your audio icon shows that you're speaking, but just get the connectivity right. Kindly be patient till we fix this technical issue.
Just check your sound again. Okay, now you're there. Hello. Yes, we can hear you. Thank you very much. So may I start? Yes, of course, all yours. Thank you, sir. Good morning, everybody. Sir, screen share दिखाई दे रहा है? Yes, दिखाई दे रहा है. Thank you, thank you. So good morning, everybody. Today we have designed. आज जो हम लोग बनाए हैं the quick product knowledge, first product knowledge as per the disease and product amalgamation. तो as part 1 start करता हूं. तो पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिजीज, थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में बताऊंगा. उसका बाद हमारा जो रहेगा देयर इज अ शॉर्ट नॉलेज एंड इज आवर एफिकेसियस प्रोडक्ट. आप इस डिजीज में क्या क्या प्रोडक्ट दीजिएगा उसका बारे में थोड़ा मैं आपसे चर्चा करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ अर्थराइटिस. अर्थराइटिस में क्या होता है इसका बारे में थोड़ा बहुत बोलूंगा और क्या क्या प्रोडक्ट मेरा पास है और क्या क्या प्रोडक्ट का रेंज है और आप कौन कौन प्रोडक्ट दीजिएगा इसका बारे में थोड़ा आज आप लोग को फर्स्ट नॉलेज के बारे में. काफी आप लोग का क्वेरीज होता है सर ये हुआ है तो क्या दूं, हुआ तो क्या दूं. इसका तो ब्रीफ आपको मैं देने का कोशिश करूंगा. सो फर्स्ट स्टार्ट होता है अर्थराइटिस. काफी पेशेंट है, आप लोग जानते हैं, आप लोग का पास भी है. तो बेसिकली मैं थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूँ. थैंक यू. तो बेसिकली देखिए ये घुटने की जॉइंट है, दिस अ बिग जॉइंट. और इस जॉइंट में देखिएगा कि जान के रखिए कि अर्थराइटिस का भी मोर देन 100 अर्थराइटिस अभी दिखाई गया, टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस. लेकिन इतना जानने की बड़ा क्षमता भी नहीं है. और दूसरा बात है क्या कि ये 100 अर्थराइटिस में हमको 5-6 अर्थराइटिस मिलता है, जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, एक्सीडेंटल एंड क्रिएटिव अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस एंड गाउटी अर्थराइटिस. तो बेसिकली एक सेगमेंट गाउटी अर्थराइटिस और अनदर सेगमेंट से ऑल इसको अलग करके रखे हुए हैं. तो अगर नॉर्मल जॉइंट को देखिएगा तो देखिए दो हड्डी का बीच में जो हमारा अस्थि संयोग स्थल होता है, जॉइंट होता है, इसमें क्या कर रहता है, एक तो दोनों तरफ दो बोन रहता है और इस बोन को कवर क्या होता है, एंड बोन का शेष भाग में एक कवरेज क्या रहता है, एक कार्टिलेज से, जिसको बोला जाता है नॉट इज कार्टिलेज, इट इज ए आर्टिकुलर कार्टिलेज. इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलता है. अगर अर्थराइटिस क्या है, दोनों हड्डी अगर नजदीक में आ जाती है या फ्रिक्शन होती है दोनों में, देन स्टार्ट द अर्थराइटिस, जिसको हम लोग बात बोलते हैं हिंदी में. तो ये एक तो चीज है. दूसरा क्या है, इस बोन को कवर किया हुआ है एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली की तरफ से, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन. आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन. और क्या रहता है इसमें, एक लिक्विड भरा रहता है. इट इज सेमी लिक्विड, नाइदर इट इज, ये क्या है कि बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज्यादा घना भी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड. इस जो रीजन है इसको हम लोग साइनोवियल रीजन बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं. और इसके अंदर में क्या कर रहता है, एक होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, दोनों बोन का एंड पार्ट में रहता है. और क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन इसको कैप्सूल की तरह बंद किया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन. एंड और क्या रहता है, और एक तो रहता है इसके अंदर में एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड. अगर इस तीनों चीज में कोई भी अगर इसका डिफरेंसेस हो जाती है, अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज इसको खा जाता है, या इसको डैमेज हो जाता है, या ये टूट जाता है, या साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख जाता है या ज्यादा पतला हो जाता है, नॉट ओनली दैट, अगर इस मेम्ब्रेन अगर फट जाता है तो स्टार्टेड द अर्थराइटिस. अर्थराइटिस में क्या हेरिडिटी भी हो सकता है, चोट लगने से भी हो सकता है, बॉडी का कुछ रिएक्टिव रिएक्शन होता है उसके लिए भी हो सकता है, काफी कारण से हो सकता है. लेकिन हमको ट्रीटमेंट क्या करना है,
अगर रिमोटेड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सीडेंटल अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, इसको अगर ट्रीटमेंट करना है तो मैं क्या प्रोडक्ट, आप लोग के पास काफी इंक्वायरी रहता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हम लोग के पास है। अभी ये जो हम लोग जो प्रोडक्ट के बारे में रखा है, तो इसको डिवाइड किया हुआ है, एक कंपल्सरी मेडिसिन, अनदर इज एक्सेसरीज मेडिसिन। कंपल्सरी मेडिसिन आपको देना ही है, उसका साथ आप कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज सर्कल 1 टैबलेट बीडीपीसी, मतलब क्या, खाना खाने के बाद सुबह शाम दोपहर को रात को खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल आप दे सकते हैं, अलोंग विथ आप इसको कॉम्प्लीट टैबलेट, ये दोनों चीज देना ही है आपको, इज ए कंपल्सरी। कॉम्प्लीटो टैबलेट 1 टैबलेट बीडीपीसी, मतलब खाने खाने के बाद, एक दोपहर को खाने खाने के बाद, रात को खाने खाने के बाद। और इसका साथ आपको देने एनी वन ऑफ देम, सलाह की जूस या सलाह की टैबलेट, इसको भी आपको खाने खाने के बाद ही देना है। अगर जूस देते हैं तो 15 ml बीडीपीसी, नहीं तो क्या 15 ml सुबह शाम खाने खाने के बाद, और सलाह की टैबलेट ये भी दे सकते हैं सुबह शाम खाने खाने के बाद। तो आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, दोपहर की खाना रात के खाने का समय आप दीजिए, खाना खाने के बाद दीजिए सर्कल टैबलेट एंड कॉम्प्लीटो, और नाश्ते के बाद दीजिए, दोनों टाइम अगर नाश्ता करते हैं तो उस टाइम दीजिए आप, लेकिन 2 बार देना ही है। साथ में इफेक्टेड एरिया, जिस जगह में हुआ है, हम तो एक तो बोन दिखाए, अगर बड़ी बड़ी ज्वाइंट में अगर आपको होती है, जहां पर कंधे भी हो सकता है, नेक भी हो सकता है, कनुई में हो सकता है, रिस्ट पे हो सकता है, काफी जगह में हो सकता है, एंकल में हो सकता है, जहां जहां बड़ा जॉइंट में, उसमें आप थोड़ा सा पहले पेन गो ऑयल, लिट थोड़ा सा पेन गो ऑयल उसमें हल्का से लगाइए, कभी इसको मालिश मत कीजिए, मसाज नहीं करना है, इसको जस्ट लगा के सूखे कपड़े तावे में गर्म करके उसको ऊपर में आप सेक देते रहिए। इसको आप कितना बार भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार कीजिएगा उतना बार ही अच्छा है इसका, लेकिन मिनिमम 3 बार पर डे करना ही है, पेन को ऑयल 3 बार इस्तेमाल। अब आ जाता हूं मैं एक्सेसरीज मेडिसिन। तो कंपल्सरी मेडिसिन में एक बार दोहरा देता हूं, सर्कल टैबलेट एंड कॉम्प्लीटो आफ्टर लंच, 1 टैबलेट बीडीपीसी, और कॉम्प्लीटो उसको भी आप दीजिए 1 टैबलेट बीडीपीसी, मतलब खाने खाने का बाद दिन में 2 बार। सलाह की जूस ऑल्सो 15 ml, दिन में 2 बार 3 चम्मच खाने खाने के बाद, या सलाह की टैबलेट, अगर सलाह की जूस दे तो सलाह की टैबलेट ना दीजिएगा, कोई भी एक तो, और पेन गोल लगा के आप उसको सेक देते रहिए। अब आता हूं मैं एक्सेसरीज, इसको आप दे भी सकते नहीं भी सकते, लेकिन अगर होता है तो करकुमिन दे सकते हैं 1 कैप्सूल बीडीपीसी, नहीं तो बोन एक्टिव टैबलेट, अगर देखते हैं कि बोन के अंदर में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, बोन एक्टिव टैबलेट। लेकिन एक तो क्वेश्चन है, आप जो डायबिटीज के लिए आप एक काम कीजिएगा, करकुमिन दीजिए, इन केस ऑफ डायबिटीज प्लीज रिकमेंड करकुमिन कैप्सूल और टैबलेट इंस्टेड ऑफ सर्कल। अगर सर्कल आप डायबिटीज पेशेंट को देते हैं, सर्कल में ग्लूकोसामाइन है, इट कैन रेज अप का एक्चुअली ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो एक काम कीजिएगा, अगर पेशेंट को अर्थराइटिस है, अलोंग विद डायबिटीज है, मधुमेह है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसको सर्कल ना देके उस जगह में लेकिन करकुमिन दे दीजिएगा, करकुमिन सुपर एक्टिव टैबलेट। लेकिन करकुमिन लेकिन एम्प्टी स्टोमक में देना है, करकुमिन कभी आप खाली पेट में देना है, कभी उसको भरा पेट में ना दीजिए। तो अगर पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो उस टाइम दीजिए करकुमिन 1 टैबलेट बीडीएसी, उसका साथ कॉम्प्लीटो, सलाह की जूस जैसा है, बाकी सब प्रोडक्ट एक ही रहेगा, खाली सर्कल को छोड़ के आप उसको करकुमिन दे दीजिए। दिस इज द शॉर्ट ब्रीफ ऑफ अर्थराइटिस। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं गाउटी अर्थराइटिस। देखिए गाउटी अर्थराइटिस, इट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। अगर आपका बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड की स्टोरेज हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो जाके गाउटी अर्थराइटिस पैदा होता है।
लेकिन गाउटी अर्थराइटिस जो है ये स्टार्ट होती है बड़ी छोटी छोटी जॉइंट में, बड़ा जॉइंट में स्टार्ट नहीं होता है और बाद में ये बड़ा जॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यूरिक एसिड के लिए अगर ये बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, छोटी छोटी जॉइंट में जाके बस जाता है, जम जाता है और हमको गाउटी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए क्या प्रोडक्ट देना है जरा आप देख लीजिए। कंपल्सरी में यूरिएसी केयर 1 कैप्सूल बीडीएसी, मतलब खाना खाने का पहले, इसका मतलब खाली पेट 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम आप लेते रहिए यूरिएसी केयर। साथ में क्या दीजिएगा, आप दीजिएगा सलाह की जूस, ये लेकिन खाना खाने का बाद, दोपहर को 3 चम्मच खाना खाने का बाद या 1 टैबलेट खाने खाने का बाद, रात को खाना खाने का बाद आप सलाह की टैबलेट दीजिए। अब आता है एक्सेसरीज मेडिसिन में, जो आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एज पर द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, इंटेंसिटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट से बात करके आपको लगता है कि देना चाहिए तो आप जरूर दीजिए, लेकिन कंपल्सरी मेडिसिन आपको देना ही है। जिससे कॉम्प्लीटो आप दे सकते हैं, इसमें 1 कैप्सूल खाने खाने का बाद 2 टाइम, पेन को ऑयल लगा के थोड़ा सेक दे दीजिए। आप गिलोय दे सकते हैं, वन इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन गट्टी अर्थराइटिस। कर्कुमिन आल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स। अश्वगंधा टैबलेट इसका सर, लेकिन इतना ज्यादा हम लिख रहा हूं आपके पास ऑप्शन करने के लिए, सब मत दे दीजिएगा, कोई भी एक कंपल्सरी में दीजिए, ये एक्सेसरीज में दीजिए। इतना प्रोडक्ट से आप इजीली गाउटी अर्थराइटिस कंप्लीट कर सकता है, आप ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन जान कर रखिए कुछ कुछ परहेज की पाबंदी है। जैसे यूरिक एसिड जो जो चीज से बढ़ जाती है, जैसे रेड मीट, एनी सॉर्ट ऑफ रेड मीट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी मांस आप इसको रेस्ट्रिक्ट पेशेंट को ना दीजिए। छोटी छोटी दाल इसको नहीं दीजिए, चने दाल के ऊपर से दे सकते हैं लेकिन छोटी छोटी दाल आप इसको ना दीजिए। थर्ड क्या है कि जिस जगह में थोड़ा सा, जिस सब्जी में छोटा छोटा बिया होता है, स्मॉल सीड्स होते हैं, जैसे पटल हुआ, आपका ब्रिंजल हुआ, आपका मिर्ची हुआ, आपको लेडीज फिंगर हुआ मतलब भिंडी हुआ, ये सब टमाटर हुआ, ये सब चीज आप छोटे छोटे बिया युक्त सब्जी आप उनको रिकमेंड ना कीजिए। एंड दूध या दूध की कोई चीज आप इसको रिकमेंड ना कीजिए तो जल्दी ठीक होगा, बिकॉज इस छोटे छोटे बिया युक्त चीज से, सीड से क्या होता है, बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड बढ़ा देता है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी लिखिएगा साथ में एक प्रोडक्ट जरूर दीजिएगा। हर डिजीज में 3 to 4 लीटर्स वाटर पर डे उनको कंज्यूम करना ही है अलोंग विथ आवर प्रोडक्ट। अब आता है एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या, जब सूजन हो जाती है कोई भी पेशेंट को, जैसे सूजन होती है, इसमें मतलब नहीं कि सूजन होने से ही पेन रहेगा, लेकिन कभी कभी कोई डिजीज होती है सूजन हो जाती है उस टाइम, लेकिन आप क्या दीजिएगा, कंपल्सरी मेडिसिन में सलाह की टैबलेट एंड सलाह की जूस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और मेरा 2 ही रेंज है, जिसको सलाह की टैबलेट भी आप दे सकते हैं उनको, नहीं तो सलाह की जूस भी दे सकते हैं। कितना दीजिएगा, खाने खाने का बाद दीजिए 1 टैबलेट, सुबह रात को या दोपहर को खाने खाने का बाद, नहीं तो सलाह की जूस दीजिए 15 ml, ये भी दे सकते हैं आप, लेकिन खाने खाने का बाद दीजिएगा, भरी पेट में दीजिएगा। पेन ऑयल लगा के उसमें आप सेक दे सकते हैं, हीट कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रोडक्ट दीजिएगा, इससे काफी है फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी। साथ में नोनी जूस ऑल्सो, नोनी विथ कॉम्बिनेशन, नोनी विथ अश्वगंधा, नोनी विथ एलोवेरा, ये भी दे सकते हैं, प्लेन नोनी भी दे सकते हैं। नोनी इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव इन एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एक्सेसरीज में आप अश्वगंधा भी दे सकते हैं, एलोवेरा भी दे सकते हैं, एलोवेरा कोई रेंज कोई एक तो साथ ऐड कर सकते हैं, स्पिरुलिना भी आप दे सकते हैं, और करकुमिन, करकुमिन सुपर एडवांस टैबलेट, करकुमिन कैप्सूल, कुछ भी दीजिए इसका साथ, लेकिन कोई भी दीजिए थोड़ा सा, एक तो भी विद द कंपल्सरी मेडिसिन का साथ। अगर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आती है, तो इसको आप इस प्रोडक्ट से आप इजिली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पुनर्नवा ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, पुनर्नवा भी आप दे सकते हैं। बेड सोर, बेड सोर आप देखिए, थोड़ा मैं पिक्चराइज कर दिया है कहीं पर, इसलिए से डिकूपेटस अल्सर और इट इज अ प्रेशर अल्सर
कहीं पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो इसमें क्या होता है, घाव पैदा होते हैं जिसको हम लोग बेड सोर बोलते हैं। नॉर्मली पैरालिसिस पेशेंट जो बेड में सोया रहता है बहुत देर तक, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या होता है, एक जगह में प्रेशर गिरते रहता है, वहां पर जाके नेक्रोसिस बनता है और उसमें क्या होता है, बेड सोर हो जाते हैं। ये खतरनाक है, स्पेशली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है। नहीं तो बेड में बहुत दिन से पड़ा हुआ पेशेंट को बेड सोर होता है और बहुत दर्दफुल चीज है। इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट कीजिएगा, काफी पेशेंट हम लोग का पास है और आ भी रहा है, तो बेड सोर के लीजिए कंपल्सरी मेडिसिन सीबेक्ट्रम जूस। सीबेक्ट्रम इज अ वेरी इफेक्टिव इन बेड सोर और डिकोवर्टेड अल्सर और प्रेशर अल्सर। कितना दीजिएगा, 3 चम्मच सुबह शाम खाली पेट। और मेरा एंटीसेप्टिक क्रीम है, सर्वत से एंटीसेप्टिक क्रीम, उसको आप लोकली उसको अंदर लगा सकते हैं, उसको लगाइए। ये दोनों चीज से आपको बहुत जल्द इसको राहत मिल जाएगी। इसका एक तो नैगिंग है, बहुत दिन से ये होते रहता है और बहुत दिन ये लॉन्ग ये चलते रहता है। तो बेड सोर में क्या देना है, सीबेक्टम पिलाइए। सीबेक्टम आप उसमें लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए तो बेड सोर से पेशेंट को राहत मिल जाएगा। और एक तो काम कीजिएगा, पेशेंट को पलट पलट के सोना है। अगर पैरालिसिस पेशेंट है, कभी दाहिना तरफ कभी बाया तरफ, अगर पीठ का तरफ हुआ है या बैक पोर्शन में हुआ है तो कभी दाहिना तरफ कभी आपको बाया तरफ पलट दीजिए, ताकि उसमें प्रेशर क्रिएट ना हो और उसको जल्दी राहत मिल जाएगी। ब्लडर इन्फ्लेमेशन, आप जानते हैं कि मेरा जो यूरिन फॉर्म होता है शरीर में, वो जाके थैली में सेट होता है, वहां शरीर में जाके जमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। उसी ब्लडर का अगर किसी तरह से उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बेसिकली बोलते हैं सिस्टाइटिस या ब्लडर इन्फ्लेमेशन। कोई भी रिपोर्ट में अगर मेडिकल टर्म्स लिखा रहेगा तो थोड़ा सा इसको कंसल्ट कर लीजिएगा। इसको सिस्टाइटिस इस क्या है तो जान के रखिए, मेरा दोनों जो किडनी है, किडनी से एक तो नली आया है, ब्लडर, यही देखिए ब्लडर है, और इसमें क्या होता है, एक नली आया है, एक पाइप आया है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, और जो नली से यूरिन एक्सक्रीट करता है, बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। और ये है एक तो ब्लडर दिखाई दे रहा है, हम लोग को, हम पेन से मार्किंग कर रहा हूँ, हाइलाइटर से मार्किंग कर रहा हूँ। तो अगर इस ब्लडर में किसी तरह से इन्फेक्शन हो या चोट लगे या किसी तरह से इसको इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम पूरा रिसर्व करने के जो बॉडी का सिस्टम है वो थोड़ा बिगड़ जाती है। और इस डिजीज को लिए एज ओल्ड में अगर ऑटोमेटिक आता ही है तो ये एज ओल्ड में जाके बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए हमको क्या देना है, दिस इज ब्लड इन्फ्लेमेशन ऑफ सिस्टम में थोड़ा देख लेता हूँ। कंपल्सरी मेडिसिन आप दीजिए, कंपल्सरी प्रोडक्ट में दीजिए एस्पाल्स इज अ वेरी इफेक्टिव इन सिस्टाइटिस। एस्पाल्स सच ए प्रोडक्ट, इसमें काफी बेरीज है और कुछ इंग्रेडिएंट्स है, इसका इंग्रेडिएंट्स का काइड से आप इसको सिस्टाइटिस को रोक सकते हैं। बिकॉज जानते हैं कि अगर इस तरह से कहीं पर भी अगर कोई इंफेक्शन होता है तो नॉर्मली प्रोडक्ट जाने और काम करने की क्षमता बहुत कम प्रोडक्ट की है। अगर आप इसको एस्पाल्स देते हैं सुबह 3 चम्मच खाली पेट में, शाम को 3 चम्मच खाली पेट में, तो सिस्टाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट आप इसको एनी वन ऑफ देम, मोरिंगो कैप्सूल आप दे सकते हैं। मोरिंगो कैप्सूल आल्सो वेरी इफेक्टिव इन सिस्टाइटिस या ब्लड इन्फ्लेमेशन। मोरिंगो ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, 5 ड्रॉप्स सुबह शाम खाली पेट में। मोरिंगो कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट में। और एक्सेसरीज में जो देना है, गैनोडर्मा इसका साथ आप ऐड कर सकते हैं। गैनोडर्मा आल्सो वर्क्स इन सिस्टाइटिस इफेक्टिव, तो गैनोडर्मा भी आप दे सकते हैं। तो इतना प्रोडक्ट से आपको देना है बेसिकली इंसिस्टेंट, इतना प्रोडक्ट्स आपको ट्रीटमेंट करना है। बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ मतलब मुंह से दुर्गंध निकालना, इसको हेलिटोसिस बोला जाता है इन मेडिकल टर्म्स में। बैड ब्रीथ में क्या होता है कि मुंह से हर वक्त बदबू निकलती रहती है। इसके लिए भी मेरा काफी पेशेंट है जिसका लीवर की प्रॉब्लम हो,
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, या और कुछ मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो मुंह से खराब खराब बदबू निकलते रहती है। तो इसका इट इज वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। कई पार्टी में गए हैं, आपका मुंह महक रहा है दुर्गंध से, तो इट इज नॉट पैलेटेबल टू एवरीबॉडी। तो इसके लिए आप क्या दीजिए, आप इसको एप्पल साइडर विनीगर दीजिए। एप्पल साइडर विनीगर इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द ब्रेड बीफ। और इसका अगर ये एप्पल साइडर विनीगर, उसका साथ आप दीजिए व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्रेड बीफ या हेलिटोसिस। उसका साथ हैप्पी मॉर्निंग, आप जरूर पेट को साफ रखने के लिए उनको आप हैप्पी मॉर्निंग दीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन और अगर पेट साफ ना रहे तो बैड ब्रीथ होती है। तो इसके लिए क्या देना चाहिए, हैप्पी मॉर्निंग कितना दीजिएगा, 2 चम्मच शाम को 6 बजे, 2 चम्मच शाम को 6 बजे सादा पानी के साथ उनको पिला दीजिए हैप्पी मॉर्निंग। तो एप्पल साइडर विनेगर, व्हीट ग्रास जूस एंड हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग कब दीजिएगा, शाम को 6 बजे आप 2 चम्मच सादा पानी से घोलकर उसको दे दीजिए, पेट बीट खत्म हो जाए। गैनोडर्मा टूथपेस्ट ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर पेस्ट में अगर आप चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज करा दीजिए। गैनोडर्मा टूथपेस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस, और ये ब्रेड विथ के लिए अच्छा काम करते हैं। और एक्सेसरी में आप ट्रिफोला टैबलेट दे सकते हैं, ट्रिफोला जूस दे सकते हैं, लेकिन इसको 1 टैबलेट खाली पेट में दीजिए दिन में 2 बार, या ट्रिफोला जूस भी दीजिए 1 टैबलेट, 1 TSM BDPC जूस के लिए खाली पेट में 3 चम्मच दीजिए इसको, सॉरी 1 चम्मच लिखा हुआ, गलती हो गया, 3 चम्मच दीजिए। और विल डाइजेस्ट ऑल्सो 3 TSM, 3 चम्मच या 2 से 3 चम्मच आप उनको दीजिए खाने का बाद। सर्वजाइम ऑल्सो दे सकते हैं 3 चम्मच विद खाने, ये सब 1 चम्मच हो गया, इसको 3 चम्मच कर लीजिएगा। साथ में फरेल सीड ड्रॉप ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे 5 to 10 ड्रॉप्स आप दीजिए सादा पानी के साथ खाने का बाद, इसको तुरंत खाने का तुरंत बंद दीजिएगा, कि इतना काम करेगा। लिवर केयर कैप्सूल ऑल्सो यू कैन ऐड, लिवर से ये होती है तो आपको अगर पता चलता है तो इसको लिवर केयर कैप्सूल, लिवर कैप्सूल आप इसको दीजिए। और साथ में दूसरा प्रोडक्ट में आ जाता हो, कफ एंड कोल्ड। कुछ पेशेंट ऐसा लगता है कि आपको कंप्लेन करेगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा बहुत जल्दी जल्दी मेरा जुकाम हो जाती है, मेरा इन्फेक्शन हो जाती है, मेरा ठंडा लगता है ड्यू टू इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज के लिए होती है। अगर लो इम्यूनिटी आपका बॉडी में है तो इसके लिए बार बार होता है, एलर्जी कॉन्टेमिनेशन की भी होता है, काफी कारण इसका है। अगर बार बार जुकाम महीना में 2-3 बार, स्पेशली क्या होता है, स्पेशली तब सीजन चेंज होती है तब इसको जाके ज्यादा होता है। लेकिन आप जान कर रखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, इसका कफ एंड कोल्ड के लिए आप दीजिए कंपल्सरी मेडिसिन में एनी वन ऑफ देम, तुलसी ड्रॉप 3 ड्रॉप्स BDSC, 3 ड्रॉप दीजिए सादे पानी के साथ, नॉर्मल वाटर इन एम्प्टी स्टोमक, 3 ड्रॉप दिन में 2 बार देना है। या आप दीजिए तुलसी टैबलेट, 1 टैबलेट BDSC का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार खाली पेट में। तुलसी कर्कुमिन ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, इसको भी आप दे सकते हैं, लेकिन एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक तो दीजिए। कभी ऐसा होता है, क्यों मैं बार बार बोल रहा है एनी वन ऑफ देम, बार बार क्या होता है कि जब हम लोग कुछ ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना प्रोडक्ट रेंज सर्वश्री के पास है, इतना बड़ा खजाना है, आदमी कॉन्फ्यूज होकर तुलसी 2 ठो दे देता है, या सोचे अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा सिरप, ट्रिफोला टैबलेट, ट्रिफोला सिरप, दोनों हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए, कोई भी एक ठो दीजिए इन सेम कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। साथ में और क्या देना है, हनी रस, हनी रस 3 चम्मच, इज अ कप फॉर्मूला, 3 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए। कफ केयर, इसको भी, इसका देने का कोई टाइम नहीं है, खाना खाने का बाद या खाने खाने का पहले, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कभी भी आप दे सकते हैं। दिन में 3 बार इसको 3 चम्मच देते रहिए। तुलसी कफ केयर 3 कप फॉर्मुलेशन मेरा पास, इसको जरूर आपको देना है। तुलसी एक्ट्स एज एंटी एलर्जिक, पावरफुल एंटी एलर्जिक, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। किस कारण से उसको जुकाम हुआ है, किस कारण से उसको इन्फेक्शन हुआ है, बिफोर टेस्ट आप नहीं जान सकते। तो मेरा पास इतना सुंदर एक प्रोडक्ट है तुलसी, जो आप पंच तुलसी, इसको आप कहीं पे दीजिएगा, इट्स वर्क्स एज एंटीबैक्टीरियल,
एंटी फंगल एंड एंटीवायरल, तो कुछ भी हो ये काम कर लेगा। और एक्सेसरीज में आप दे सकते हैं इसको, स्पाल्स इंक्रीज द बॉडी इम्यूनिटी वेरी क्विकली। नॉट ओनली दैट, आप आयुष का टैबलेट, आयुष का सिरप भी दे सकते हैं फॉर द इंक्रीज। लाइफ प्लस टैबलेट ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द कफ एंड कोल्ड, लाइफ प्लस टैबलेट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या है सीओपीडी? बेसिकली मेरा जो सांस नली, सांस लेने वाली जो पाइप होती है उसके अंदर में जाके सूजन हो जाती है और काफी इसमें कफ डिपोजिशन होता है, बलगम डिपोजिशन होता है, तो सांस लेने में हमको तकलीफ होती है। अगर पाइप को भीतर से सूजन हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, और देखिए भीतर में देखिए एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, भीतर से फूल गया है और भीतर में कफ डिपोजिशन हो गया है, तो सांस लेने में हमको जब तकलीफ होती है, इसी को ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या देना चाहिए? डॉक्टर लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक तो गैस दे देता है, इनहेलर दे देता है। इट इज अ स्टेरॉइड इनहेलर होता है कभी कभी। दिस इज द एक्चुअली ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकस में होता है इसलिए इसको ब्रोंकोडायलेट कर देता है, मतलब भीतर से इसको फुला देता है ताकि पैसेज बढ़ जाए, रास्ता आ जाए, ताकि हम सांस लेने में दिक्कत ना हो। आप मेरा जो प्रोडक्ट है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी साइड इफेक्ट है इनहेलर के लिए, जो आप इसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते। लेकिन कंपल्सरी मेडिसिन में मैं बाद में एक एक डिजीज पर जब मैं चर्चा करूंगा तब आपको व्हाट इज सीओपीडी, व्हाट इज अस्थमा, ये हम डिटेल्स में आप लोग को चर्चा करूंगा। आज थोड़ा शॉर्ट नॉलेज एंड व्हाट इज द इफेक्टिव प्रोडक्ट आई हैव, मतलब मेरा पास क्या, इसका लिए क्या प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आगे वाले दिन में कोई भी डिजीज आए तो आप इसको तुरंत तुरंत टेक केयर कर सकते हैं, आप इसको प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं। तुलसी ड्रॉप जरूर दीजिए, तुलसी टैबलेट भी आप दे सकते हैं और तुलसी करकुमिन भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी एक तुलसी, लेकिन खाली पेट में जितना दीजिएगा उतना ज्यादा इफेक्टिव है। साथ में क्या दीजिए, कोई भी मेरा तुलसी कफ केयर है, कोई भी कफ फॉर्मूला आप उसको एक तो जरूर दीजिए, कोई भी एक कफ फॉर्मूला उसको दिन में 3 बार देते रहिए। और इधर एक्सेसरीज में क्या दीजिएगा, एलोवेरा कैप्सूल, एलोवेरा सुगंध। अच्छा मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल? यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और रेड एलोवेरा, ब्लैक एलोवेरा, एलोवेरा नोनी, टोटल एलोवेरा के रेंज है, इसको आप इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एलोवेरा इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए आप काफी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जैसे ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एस्थमा, कुछ भी हो, इसके लिए बहुत इफेक्टिव भी है, तो आप एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस इट इज ऑल्सो वंडरफुल, सेम चीज होती है, ये दूसरा पार्ट में जाके इसका अंदर से भी देखिए सूजन हो जाती है। इट इज अ नॉर्मल, देखिए पाइप कैसा रहता है, नॉर्मल ट्यूब रहता है, और इस जो ट्यूब है यह देखिए भीतर से सूजन हो गया, प्लस जाके कफ फॉर्मेशन होता है, तो सांस लेने में मेरा तकलीफ होती है। तो ये जो है इसका लिए भी सेम प्रोडक्ट आपको देना है। इट इज ऑल्सो तुलसी करकुमिन, एस्पाल्स, एनी वन ऑफ एस्पाल्स ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, ये दोनों दीजिएगा, तुलसी करकुमिन एंड एस्पाल्स, इसका लिए फॉर द इफेक्टिव ऑफ ब्रोंकाइटिस के लिए इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। एनी कफ फॉर्मूला आप इसका साथ ऐड कीजिए, कोई एक तो, अगर तुलसी कफ केयर हो तो हनी कफ केयर हो, या कफ केयर सिरप हो, कुछ भी हो, इस पे एक तो आप इसको ऐड कीजिए दिन में 3 बार कोई टाइम में। और साथ में आप मोरिंगो दे सकते हैं, मोरिंगो ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द ब्रोंकाइटिस, साथ में एक्टिव मोरिंगो भी है मेरा ड्रॉप। एलोवेरा अश्वगंधा ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, रेड एलोवेरा, ब्लैक एलोवेरा, एलोवेरा नोनी और स्पिरुलिना ऑल्सो एक करना है, लेकिन कोई भी एक तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी वेरी कॉमन है, हाइपर एसिडिटी के लिए वो जलन होती है, मेरा जो खाने के जो पाइप है उसमें काफी जलन होती है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको क्या क्या प्रोडक्ट देना है। बेसिकली क्या होता है, ये जो मेरा स्टोमक है
देखिए यहाँ पर पहले यहाँ से फूड पाइप से खाना आके अब मेरा ये स्टोमक में जाके ये जमता है, तब जाके कुछ हमारा सेल है स्टोमक में जो कुछ रिलीज करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। लेकिन ये ज्यादा से अगर रिलीज कर देता है तो क्या होता है, खाना में जितना लगा लगा, नहीं तो बाकी जो है गैस के मुताबिक से ये ऊपर उठने लगता है और धीरे धीरे ये गैस ऊपर आके आपको क्या होता है, जलन महसूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बर्न, सीना जलना जैसा लगता है। तो इसी के कारण में हमको अगर इसका प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हो जाता है तब जाके ये होता है। ये लॉन्ग टर्म एक प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट का, और इसको जो हम लोग बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, इसको लेकिन हमको एसिड हो जाता है कोई कोई बोलते हैं, लेकिन बेसिकली एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी, इसका लिए आप लोग क्या दीजिएगा? एसिडिटी क्या ड्रॉप, 5 ड्रॉप्स BDSE, एसिडिटी क्या ड्रॉप्स 5 ड्रॉप BDSE, साथ में क्या दीजिएगा? फोरेंसिक ड्रॉप ऑल्सो, लेकिन इसका गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटे इसका गैप पे आप दीजिए। सुबह उठ के आप एसिडिटी केयर ड्रॉप दीजिए, शाम को दीजिए, और खाने के 1 घंटा, दोपहर को खाने के 1 घंटा पहले फोरेंसिक ड्रॉप जरूर दीजिए। आई थिंक इसमें काफी काम हो जाएगा। उसका साथ आप ऐड कीजिए रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द हाइपर एसिडिटी। नहीं तो आप एलोवेरा अश्वगंधा दीजिए, ब्लैक एलोवेरा दीजिए, या एलोवेरा नोनी दीजिए। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर मेरा पेट साफ ना है तो मेरा इसका हाइपर एसिडिटी दिखाई देता है, तो आप हैप्पी मॉर्निंग इसका साथ ऐड कीजिए जरूर जरूर। तो 3 प्रोडक्ट्स, 1 इज एसिडिटी केयर ड्रॉप या फोरेंसिक ड्रॉप, रेड एलोवेरा, ब्लैक एलोवेरा, एलोवेरा नोनी या हैप्पी मॉर्निंग। सॉरी, एक चीज बता देता हूं, अगर आप एसिडिटी केयर ड्रॉप देते हैं तो आप फोरेंसिक ड्रॉप मत दीजिए, एनी वन ऑफ them। अगर आप फोरेंसिक ड्रॉप देते हैं तो एसिडिटी केयर देने का जरूरत नहीं है। कोई भी एक तो जो आपका पास है उसको आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। बोथ प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव फॉर हाइपर एसिड। हैप्पी मॉर्निंग कब देना है? हैप्पी मॉर्निंग 2 चम्मच शाम को 6 बजे सादा पानी के साथ, दैट्स ऑल। अब आतो में एक्सेसरीज में क्या क्या दे सकते हैं। आप तुलसी ड्रॉप भी दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए वेरी गुड एज ए एंजाइम एंड ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम। तुलसी टैबलेट, आंवला टैबलेट आप दे सकते हैं, आंवला जूस दे सकते हैं, त्रिफला टैबलेट दे सकते हैं। मेरे पास काफी प्रोडक्ट रेंज है, राइट। नेक्स्ट में आ जाता हूं, एनीमिया, रक्त स्वल्पता, खून की कमी। इसके लिए हर पेशेंट को पास नॉलेज है कि मेरा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, रक्त की जो होना चाहिए, खून की कमी हो जाती है। नहीं, ऐसे नहीं होती है। एनीमिया का मतलब क्या है? मेरा खून के अंदर में एक सेल रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं RBC या हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कॉर्पस। इसी का जितना होना चाहिए उससे अगर कम हो जाते हैं, रिडक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज द एनीमिया। इसको एनीमिया बोला जाता है, खून की कमी नहीं। इसका क्या दिया है? खून की कमी का मतलब खून की वॉल्यूम नहीं कम जाता है, खून जितना होना चाहिए 4 to 6 लीटर ऑन एन एवरेज, इसका लेकिन कमती नहीं होता है। यार क्या होता है, इसका खून के अंदर में जो RBC है उसका परसेंटेज अगर गिर जाता है तब जाके हम लोग बोलेंगे एनीमिया। लेडीज लोग अक्सर, मैं फीमेल पेशेंट को अक्सर आपको लेकिन एनीमिया की शिकायत आपको दिखाई देगी। अगर आप पेशेंट का जब आपका पास आप देख पाएंगे तो आंख को नीचे करके देखिएगा। नॉर्मल आदमी को यहाँ पर क्या होता है, रेड होता है या पिंकिश होता है, लेकिन अगर एनीमिया होता है तो पूरा सादा हो जाता है। दूसरा देखने का सिस्टम क्या है, सपोज दैट आपका पास कोई रिपोर्ट नहीं है तो पेशेंट को कैसे देखिएगा? पहले तो आंख से देख लीजिए, नहीं तो अगर पेशेंट आपका साथ है तो अंगुली को आप इस तरह से दबाइए और छोड़ दीजिए। अंगुली को इस तरह से दबा के अगर छोड़ देते हैं तुरंत ये लाल हो जाता है तो पेशेंट नॉट एनीमिक, ये पेशेंट का एनीमिया नहीं है।
लेकिन इसको सादा से लाल होने की समय बहुत देर लग रहा है, तो जानकर रखिएगा he or she also anemic, राइट। इसके लिए मैं क्या प्रोडक्ट दूं? कंपल्सरी मेडिसिन में आपको क्या दे रहा है? श्रीवियन सिरप 3 चम्मच सुबह शाम भरी पेट। श्रीवियन सिरप 3 चम्मच भरी पेट में, या हेमोफिट इसको भी दीजिए आफ्टर फूड। दो ही प्रोडक्ट मेरा है टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन, श्रीवियन सिरप या हेमोफिट, कोई भी एक है। और एक्सेसरीज में आप दीजिए क्लोरोफिल सिरप। क्लोरोफिल इज ए नियर टू आवर ब्लड सेल्स, इसको हरी खून बोला जाता है। क्लोरोफिल लेकिन आप दीजिए सिरप 3 चम्मच खाली पेट। क्लोरोफिल कभी आप भरे पेट में मत दीजिए। क्लोरोफिल सिरप 3 चम्मच भरी पेट में। साथ में दीजिए व्हीट ग्रास जूस, इट इज ऑल्सो, लेकिन व्हीट ग्रास जूस दीजिएगा तो क्लोरोफिल देने का जरूरत नहीं। एक्सेसरीज मेडिसिन में कोई भी एक तो दीजिए क्लोरोफिल सिरप या व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस भी दीजिए 3 चम्मच भरी पेट, खाली पेट। मोरिंगो कैप्सूल ये भी आप दे सकते हैं। मोरिंगो कैप्सूल में काफी आयरन है, काफी आयरन है। अगर आपके पास क्लोरोफिल नहीं है, आपका पास व्हीट ग्रास नहीं है, तो आप क्लोरोफिल भी दे दीजिए, ये मोरिंगो दे दीजिए। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव इन एनीमिया। एनाल्जेसिक्स हम पहले बोले थे एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन होने के लिए, लेकिन कहीं पे अगर दर्द हो रही है, चोट लग गया है, अर्थराइटिस के पेशेंट है, एनाल्जेसिक का मतलब यह है कि मेरा एक्चुअली दर्द के लिए, और एंटी इंफ्लेमेटरी क्या है? सूजन के लिए। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो है क्या, आपको ये दर्द भी होता है, सूजन भी होता है। कभी दर्द होता है, सूजन नहीं होता है। कभी दर्द होता है, सूजन नहीं होता। कभी सूजन भी होता है लेकिन दर्द नहीं होता। इसके लिए आपको क्या देना है? एनाल्जेसिक। अगर ओनली पेन है तो आपको क्या देना है? कंपल्सरी मेडिसिन सलाह की जूस एंड सलाह की टैबलेट। सलाह की जूस, सलाह की टैबलेट आप दीजिए भरी पेट में 15 ml जूस दीजिए दोनों टाइम, या 1 टैबलेट बीडीपीसी करके दीजिए। लेकिन जान के रखिए ये भी आप खाने का बाद ही दीजिए। ये सूजन में भी काम करता है और दर्द में भी काम, पेन में भी काम करता है। इट इज द एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, बोथ में काम करता है, तो इसको दीजिए। पेन को ऑयल वहां लगाइए। मेरे पास काफी पेन बाम भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको हीट कॉम्प्रेस कीजिए, गर्म सेक दीजिए। पुनर्नवा ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। कर्कुमिन ऑल्सो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हो एनोरेक्सिया। काफी पेशेंट आपको आके बोलेगा कि पेशेंट को भूख नहीं लगती है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं है, कुछ खा ही नहीं पा रहा है, और कुछ खाता है तो पचता नहीं है, और ये शरीर में लगता नहीं है। जस्ट फिगर देखिए यस आदमी का। इसका लिए आप क्या दीजिएगा? कंपल्सरी मेडिसिन में आप दीजिएगा, काफी आपका पेशेंट है, वेल डाइजेस्ट जूस 2 to 3 TSF खाने का तुरंत बाद दीजिए। खाने का तुरंत बाद दीजिए वेल डाइजेस्ट जूस। लिव जाइन मेरा पास है, 2 से 3 चम्मच खाने का तुरंत बाद दीजिए। सर्वजाइम ऑल्सो यू कैन प्रेस्क्राइब 2 to 3 TSF खाने का बाद। एक्सेसरीज में क्या दीजिएगा आप? जीरो टैबलेट ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर दिस। एक टैबलेट खाने का पहले। त्रिफला जूस, इसको भी आप दे सकते हैं, इट्स ए वेरी गुड इफेक्टिव प्रोडक्ट। इसका साथ ऐड कर सकते हैं आप 2 to 3 TSF BDAC। आंवला टैबलेट भी आप दे सकते हैं, लेकिन सब ये सब खाने का पहले दीजिए, खाली पेट में दीजिए 1 टैबलेट BDAC। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। काफी डिजीज एंड काफी प्रोडक्ट की चर्चा हुई। नेक्स्ट जब मैं आऊंगा तो आपको बाकी प्रोडक्ट, बाकी डिजीज का
कर दूंगा। थैंक यू once again, सर, ओवर टू यू। थैंक यू पार्थो सर। आई थिंक आपने आसान कर दिया कि कौन से प्रोडक्ट सर्वश्री के, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कि कौन से प्रोडक्ट यूज करने से लोगों को प्रिस्क्राइब करने में आसानी होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सजेस्टेड, सो थैंक यू वेरी मच। कुछ चैट बॉक्स में कुछ सवाल हैं, अगर इफ यू कैन जस्ट अटेंड वन ऑफ देम। ऑफ कोर्स एक मिस्टर अनिल पूछ रहे हैं कि सर 12 वर्ष का लड़के को एसएस है, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन, और उसकी बॉडी में पेन है, उसको क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? एसएस का मतलब थोड़ा फुल फॉर्म में लिखने बोलिए सर। हाँ, आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इट इज। आई डोंट नो व्हाट इज। अनिल जी, अगर आप हैं तो आप उसको इलाबोरेट कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे। हाँ, सिकल सेल है, सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया, हाँ, दिस इज द वन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। या तो उसको क्या प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी आर नॉट टचिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ कौन डिग्री है, नहीं जान के हम कोई पेशेंट को, एक्चुअली कैंसर पेशेंट को हम लोग प्रोडक्ट नहीं देते। लेकिन 12 साल का पेशेंट को, अगर इस तरह का पेशेंट है, इसको बार बार, ओनली प्रॉब्लम इज दैट पेशेंट और फेसिंग बार बार इसको ब्लड चढ़ाने पड़ती है। इसके लिए हम लोग व्हीट ग्रेप्स जूस इज द आइडियल प्रोडक्ट फॉर हिम, लेकिन 2 से 3 चम्मच से ज्यादा नहीं दीजिएगा। विद द कंसर्न ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी एक बार इसको कंसल्ट कीजिएगा। काहे के लिए काफी आदमी अभी व्हीट ग्रेप्स जूस दे रहे हैं इन सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो ऐसे इंडिविजुअल अगर आप डिसीज के बारे में अगर पूछेंगे, ऑफ कोर्स ये सिलसिला बहुत ज्यादा रहेगा। इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 9 o'clock। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज हेल्थ सप्लीमेंट्स किसको लेने चाहिए, नॉट रियली फॉर पीपल हु आर हैविंग ऑलरेडी डिसीजेस, बट जो हेल्दी हैं, अपेरेंटली हेल्दी हैं, जो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ डिसीजेस नहीं है, उनको ज्यादा मात्रा में इस प्रोडक्ट्स को नियमित तरीके से लेना है, इससे कि वो बीमार होने से बचते हैं। आप हेलमेट पहनते हैं एक्सीडेंट के पहले, एक्सीडेंट के बाद में नहीं। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट्स को सेवन करना है, अपेरेंटली फॉर हेल्दी पीपल। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स आप ये मरीज जो हैं, डिसीज जो जिनको ऑलरेडी तकलीफ हो रही है, उनको भी ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं एज अ सप्लीमेंट, एज अ न्यूट्रिशन, एज अ फूड सपोर्ट। जो कॉन्सेंट्रेटेड फूड सप्लीमेंट्स हैं, जिससे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो वाइटामिन्स हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। आप ये प्रोडक्ट ये करके ना दीजिएगा लोगों को कि आप ये ले लो और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वी आर नॉट इनटू प्रिस्क्रिप्शन, हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप इसको यू नो कि इस तरीके से दीजिएगा। तो लेट्स ऑल वेव आवर हैंड्स, जिनका भी वीडियो ऑन है, देन से थैंक यू सो मच मिस्टर पार्थो प्रतिम मुखर्जी। सो आपने इस बढ़िया तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लोगों को बता दे कि हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर बेनिफिशियल, और किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स को लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस वेबिनार। उसके पहले कि मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि you can see in the screen, तो क्या देख रहे हैं स्क्रीन में, क्या देख रहे हैं? ओके, सो स्क्रीन में है 4th एनिवर्सरी का इंफॉर्मेशन। सो ये जस्ट 3 दिन बचे हैं, आज का दिन अगर छोड़ देंगे तो। सो इस वीक को बहुत अनोखा बनाने के लिए, हिस्टोरिक बनाने के लिए, एंड लाइफ चेंजिंग मेमोरीज आपके साथ रहें, इसके लिए द मैनेजमेंट एंड द टॉप लीडरशिप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत हार्ड वर्क करके फुल स्विंग में काम कर रही है, सो दैट यू विल हैव अ प्लेजेंट टाइम। एंड आप जहां पर इस प्रोग्राम में आते हैं, तो you will be able to get an exciting overview of the company's achievements in the last 4 years and also future plans. तो इस वेबिनार, इस प्रोग्राम में आने के लिए कंपनी ने आपको कई सारे ऑफर्स दिए थे। सो 1500 बीवी, कितने लोगों ने 1500 बीवी इस महीने में किया है? अगर किया हुआ है, जस्ट टाइप डन, just type done. ओके, आपने 4th एनिवर्सरी का जो स्पेशल मंथ है
उसमें आप कर लीजिए 15 BV मैंने कर दिया है, से टाइप डन डन डन, मुझे देखना चाहिए कि इतने लोगों ने इस ऑफर को किया है। तो अभी नहीं कर सकते आप, बिकॉज दिस ऑफर इज ऑलरेडी ओवर। दूसरा ऑफर है कि आप 3,000 रुपये दे के आप 7 प्रोडक्ट्स ले सकते थे और वहां पे भी आपको 1500 BV मिलता है। तो दिस बोथ ऑफर्स आर रीपर्चेस ऑफर। कितने लोगों ने किया है? कीप टाइपिंग डन 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 करते ही आप टाइप कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, तो जस्ट होल्ड ऑन। थर्ड, ऑफ कोर्स, अगर ये आपने किया है, ये फर्स्ट ऑफर या सेकंड ऑफर, ये दोनों ने किया है आपने, तो देन यू स्टैंड अ चांस टू गेट SS 750 ml मिनरल अल्कलाइन मिनरलाइजिंग बॉटल आपको लकी ड्रॉ में मिलेगी। और ये लकी ड्रॉ होगा 20th of May ऑन फ्राइडे, जो जहां पे ताल कटोरा स्टेडियम में होगा। उसके साथ साथ आपको अभी भी चांस है कि आप एक सुपर हीरो बन सकते हैं ऑफ दिस एनिवर्सरी मंथ। तो इसके लिए आपको 30 BP का मैचिंग करना है। ये फर्स्ट परचेस का ऑफर है। तो आगे अभी आपने ऑलरेडी किया है तो आप लिख सकते हैं कि BP डन, BP डन, या नहीं है तो आपके पास 3 दिन है, टुडे 16, 17, 18। अगर वो नहीं हो पा रहा है आपसे, यू हैव अनदर ऑप्शन जहां पे आप डायरेक्ट रेफरल कर सकते हैं। देन वी आर ओवरवेल्म्ड। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि इन द लास्ट 3-4 days द नंबर ऑफ जॉइनिंग्स हैव ड्रास्टिकली गॉन अप। मतलब जो ग्राफ जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। इसके लिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्रूटिंग न्यू पीपल एंड इट्स अ गुड साइन। जो रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, जो परफॉर्मेंस बोनस जो रिवॉर्ड्स के जरिए, कैश रिवॉर्ड्स के जरिए देता है, उसके लिए there is a tremendous response and बहुत ज्यादा मात्रा में लोग BP को ज्वाइन कर रहे हैं। सो 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, या तो आप S पल्स ले सकते हैं या आप सीबकटॉन ले सकते हैं। इस दोनों में 1+1 ऑफर कंटिन्यू होता है और ये भी आपके पास 3 और दिन है, 16, 17, 18, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि द मैक्सिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम वर्क हैपेंस एट द लास्ट मिनट। दिस इज अ ह्यूमन डिजाइन। तो इसके लिए आप इसका उपयोग करें, इसका इस्तेमाल करें इस ऑफर का। प्लीज अवेल दिस ऑफर। सो एज यू नो देयर इज अ जूम शेड्यूल जो हम सुबह 8 बजे करते हैं। सो फॉर दिस वीक द जूम शेड्यूल विल बी देयर ओनली टिल मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को, ये तीनों दिन वेबिनार्स नहीं रहेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ अस विल बी देयर इन दिल्ली। तो फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, लेट मी रिपीट, there won't be Zoom webinars on Thursday, Friday and Saturday, but there will be webinars on Tuesday and Wednesday. मतलब till Wednesday ये webinars रहेंगे. So you have today ISO सर्वश्री का ISO at 7 o'clock. कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा, कल भी परसों भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा, and there will be a business training on Wednesday. So last minute कुछ announcements हैं, कुछ precautions हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, तो that will be done on Wednesday on 18th evening. So please inform this to your team members. Now the last thing that I want to do is tell you is अभी से आप ये तैयारी करें कि what is the dress code जब आप 4th anniversary के लिए दिल्ली में आते हैं। The dress code for the men is white shirt, red tie, black trouser and suit। मतलब आपको black color के पैंट शर्ट सूट और ट्राउजर डालना पड़ेगा एंड द शर्ट कलर हैज टू बी व्हाइट विद अ रेड टाई। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास समय है, आप इसको परचेस करें so that we will show our unity. And for females also, of course you can wear the same dress, of course without a tie of course, but if you are wearing a sari, we don't want anybody to have any casual dress कि this is a serious business meeting। तो वहां पे आपका करियर के ऊपर आपका कितना सीरियसनेस है और कितनी शिष्टाचार और डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, इसको जाहिर करने के लिए वी एनकरेज यू टू हैव दिस dress code. So this dress code is going to be a dress code for all the events in the future as well. So thank you friends. I'll look forward to see you on 4th anniversary. अगर आपने अभी भी ट्रैवल्स प्लान नहीं बनाए हुए हैं, so please do it. There's going to be a historic event and event के बाद में, इस anniversary celebration के बाद में, your life is going to take a major turn in terms of your growth in SHPL. So with this we close. You have a cracking week this week क्योंकि anniversary का week है और the next 2 days are very very critical.
today, tomorrow, and day after. Show your strength, show what you can do, and clock in as many BVs as possible और BPs, business points and BVs को आप अपने टीम में जोड़ दें, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से grow हो जाए. So with this we close. Thank you very much. See you tomorrow at see you today evening at 7 o'clock for once again a webinar on the business. Thank you very much. You have a fantastic day. Bye bye.